Hello and welcome to Easy Fight Classes, your one-stop solution for mastering physics with ease. From today onwards, we are starting a series for CBSE Board 2025 examination where we are going to practice good amount of competency-based questions and related uh, concepts so that we can master in board exam without any difficulty. So, quickly navigating on to the first question of today's video. When an object is positively charged by friction, then object gains some electrons, object loses some electrons, object gains some protons, or object loses some protons. Obviously, if an object is becoming, suppose this was the object, and this object is becoming positively charged after rubbing by friction, so obviously it has lost some electrons, and that's why it is becoming positively charged. So the correct answer would be object loses some electrons. Next question. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 newtons. If charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. Now, solving, we see that first of all, if the force is given by Coulomb's law, so it is written as K Q1 Q2 upon R square. So it is given in the situation that there are two charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb, and they are separated by certain distance that has not been provided in the question. तो हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं पहला केस जो दिया हुआ है उसमें फोर्स था F1, K इतना था, और फिर हम क्या कर सकते हैं Q1 Q2 को एज इट इज रखेंगे और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर. फर्स्ट केस में डिस्टेंस था R1, बाद में जाकर हम देखेंगे R1 R2 तो सेम है, तो हम उनको इक्वेट करके कैंसल आउट कर सकते हैं. अब क्या किया, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब हमने ऐड कर दिया है इसमें -5 माइक्रोकुलम एंड +5 माइक्रोकुलम, दोनों ही चार्जेस में -5 माइक्रोकुलम को हमने ऐड किया है. लेट मी करेक्ट आउट दिस थिंग. सो दोनों ही चार्जेस में हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, -5 माइक्रोकुलम. तो अब जो ये इफेक्टिव चार्ज बन जाएगा 3 - 5 would become -2 माइक्रोकुलम and +8 - 5 will become +3 माइक्रोकुलम. तो इस केस में हम मान लेते हैं कि फोर्स F2 डैश था या फोर्स F2 था, तो ये हो जाएगा हमारे इस केस में K. अब मान लेते हैं चार्जेस नए बन गए हैं, तो इनको हम Q1 डैश Q2 डैश से डिनोट करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस R2 स्क्वायर. अब हम कर लेते हैं इन दो इक्वेशंस को इक्वेट नहीं करेंगे, हम देखेंगे टेकिंग द रेशियो ऑफ F1 and F2. So what we will be getting, that is F1 upon F2 is equals to K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, और अपॉन करने के बाद डायरेक्टली R2 स्क्वायर ऊपर जाएगा और यहाँ पर बचेगा K Q1 डैश Q2 डैश. K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश Q2 डैश इंटू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर. तो हम देखेंगे कि हम डिस्टेंस को कुछ चेंज नहीं किया गया है. the only change has been made to the charge. So now we can cancel R2 R1 because they are same. So what we are left with, Q1 was initially 3 microcoulomb है और Q2 was 8 microcoulomb. Now the new charge is -2 and this is +3. माइक्रो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे यूनिट में. तो ये हो जाएगा, मैं इसको अगर इस तरफ सॉल्व करूं तो
तो देयरफॉर F1 अपॉन F2 आ रहा है हमारा -4. सो F2 का वैल्यू आ जाएगा -F1/4 and F1 was 40. So this will be minus 10 Newton. So the correct answer would be minus 10 Newton, and there will be force of attraction. The minus sign indicates. Remember, this minus sign indicates that there is a force of attraction between the two charges, and this is obvious as well because here it is -2 microcoulomb and here it is +3 microcoulomb. So these two charges will be attracting each other. So the correct answer is minus 10 newtons. Now next, coming on to, this is a very good question. An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x is equals to 1, 2, 4, 8 up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? So options are available. First of all, we would be solving them and then we will be finding out which option is the correct one. So if we draw the diagram for this, drawing diagram is very essential because this helps you to reduce the problem to a great extent. So यहाँ पर हम पहला मार्क कर लेते हैं x is equals to 0, फिर x is equals to 1, फिर आ जाएगा x is equals to 2, फिर आ जाएगा x is equals to 4, and let me extend this thing. This is x is equals to 8 and this is up to infinity. अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे हम. क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईच यहाँ पर x is equals to 1 पे, x is equals to 2 पे, x is equals to 4 पे, 8 पे एंड सो ऑन पे हमारे पास कितने चार्ज रखा हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखा हुआ है, दैट इज 1 माइक्रो कूलम. Now, if a charge of 1 coulomb is placed at x is equals to 0, that is origin, what is the net force acting on the charge? मतलब इन सारे charges की वजह से इस वाले चार्ज पर, दैट इज 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, इस वाले पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमें पता करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं सेकंड चार्ज, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फिफ्थ. सो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज ये आ जाएगा k 1 into 1 कूलम को मैंने 1 लिखा है and this is 1 into 10 raised to power minus 6, that is 1 microcoulomb divided by, अब देखेंगे x is equals to 0 and x is equals to 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 minus 0 का whole square. So this will be coming up as k into 10 raised to power minus 6 divided by 1 square. Now similarly, force on first charge due to third charge. This would be coming up as again 1 into 10 raised to power minus 6 divided by, अब ये सेकेंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 minus 0 का होल स्क्वायर. वी आर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर का न्यूमरेटर फिर से पहले की तरह सेम रहेगा, बस डिफरेंस आएगा नीचे एंड सो ऑन. तो अगर हम लोग अब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगी अब इसको, ये आएगा k इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर एंड लास्टली फोर्स ऑन first due to fifth charge would be written as k into 10 raised to power minus 6 divided by 8 square. अब अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाए, the total force on first charge will be the sum of all the forces acting on it. इस तरीके से हम लिख सकते हैं till f ड्यू टू इन्फिनिटी. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, k, मुझे यहाँ स्पेस की कमी है तो मैं क्या करूंगी, k इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 को मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल ले रही हूँ. यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर,
1/4 square, 1/8 square एंड सो ऑन टिल 1/infinity स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है, इसका इन सम हमें निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स थ्रू जीपी। तो इसका आ जाएगा k इंटू 10⁻⁻6 a/1 - r। इसमें फॉर्मूला लगेगा a/1 - r। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 - r देखेंगे तो हमारा आ जाएगा, जो कॉमन रेशियो होगा वो आएगा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ k इंटू 10⁻⁻6 इंटू this will come up as 4/3 after solving. So this will now give you, finally, when you place the value of k as 9 into 10⁻⁹, so this will be giving you the value of 12,000 newtons. So the correct answer would be 12,000 newton. Here newton would be there, it is missing. So the correct answer would be 12,000 Newton. And one more thing, if you are not remembering the K value, so I will be writing it in a particular manner, that is K is equals to 9 into 10⁻⁹. The value of this mod K will be 9 into 10⁻⁹. You have to put it up and you will be getting the answer. Now moving on to next question. Two particles A and B having charges 20 microcoulombs and -5 microcoulombs respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? I'll be drawing everything over this diagram only. See, हमें थर्ड चार्ज, एक ये दोनों चार्जेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो दोनों चार्जेस ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। हमें और एक थर्ड चार्ज, आपको उसको मान लेते हैं हम प्लस क्यू। जब भी हम किसी भी चार्ज को अज्यूम करते हैं, टेस्ट चार्ज को लेते हैं, तो उसका साइन हम प्लस लेते हैं। अब हमें उसे इस तरीके से रखना है कि वो जीरो फोर्स या जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो चलो मान लेते हैं कि हमने इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया एट पॉइंट सी। अब क्या होगा, क्या ये फिजिबल है? एक बार चेक करके देखेंगे। ये +20 माइक्रोकुलम है, ये माइनस नेचर का है, तो +20 माइक्रोकुलम इसे इस तरीके से इस तरफ रिपेल करेगा, बिकॉज देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। सिमिलरली ये -5 माइक्रोकुलम अपनी तरफ इसे खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट इज ऑफ ऑपोजिट नेचर, एंड हेंस इट विल बी एक्सपीरियंसिंग, और इट विल ट्राई टू let प्लस क्यू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों ही फोर्सेस जब एक तरफ लग रहे हैं, तो इस क्यू को तो ऑलरेडी इस तरफ ही मूव होना चाहिए। तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगने वाला, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? कि चार्ज को हमने रख दिया है बीच में। तो अब हम और एक इसको दूसरे पोजीशन पे रख कर देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पर रखें और चार्ज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करें। अब मैंने इसको रख दिया इस वाले राइट हैंड साइड ऑफ -5 माइक्रोकुलम वाले लाइन पे। कहीं पर मैंने पॉइंट सी पे रख दिया प्लस क्यू को। अब चेक करते हैं, इस प्लस क्यू पे -5 माइक्रोकुलम की वजह से इस तरफ एक्सपीरियंस होगा फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ड्यू टू +20 माइक्रोकुलम्स की वजह से इसमें फोर्स आएगा इस तरफ, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो अब हम मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकता है कि F इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये -5 माइक्रोकुलम के राइट हैंड साइड में ही लगने वाला है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकुलम, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो वहां से भी ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ये होना चाहिए। अगर हम लोग ये, मैं अगर दिखाऊं ऑप्शन ए के बारे में, अगर हम पॉइंट सी पे चार्ज को यहाँ रखते तो ये यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता,
ये यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये भी हो सकता था एक ऑप्शन। तो हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन में क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है आंसर। वो हो गया एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब सॉल्व करके देखते हैं। पॉइंट सी पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होना चाहिए ड्यू टू दीज टू चार्जेस, दैट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट ए। ये कितना हो जाएगा, के, और इधर क्यू है और इधर मैंने लिख दिया 20। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय, अब हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस है x सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है ए से लेकर बी तक। तो अब हम लोग जब ए से लेकर सी तक का देखेंगे डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी देखे, तो ये आ जाएगा हमारा के क्यू, और ये होगा -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रो, यहाँ भी हमने माइक्रो लिया था, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि फोर्स जीरो है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द चार्ज केप्ट एट सी जीरो, तो अब क्या कर सकते हैं हम, एफ सी ए प्लस एफ सी बी इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर सकते हैं। एफ सी ए क्या हो गया, के क्यू इंटू 20 माइक्रो डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस आ जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस था तो इसका ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू 5 माइक्रो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो के क्यू कट गया, माइक्रो माइक्रो कट गया दोनों तरफ से। अब क्या बचा हमारे पास, इसको सॉल्व करने का जो है तरीका, ये हो जाएगा 20/5 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/x²। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास सॉल्व करने पर ये बचेगा x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो ये आंसर आएगा, हम प्लस माइनस लेके करेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस वाला पार्ट लेने पर x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ये सही आंसर होगा बी वाला, दैट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया है ये पिछला वाला, तो हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फाइनल इक्वेशन आया था 4/5 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, जगह है यहाँ पर। तो 4/5 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ये आया। तो अब क्या करेंगे, इसको 4x स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस एक्स। अब हम एक बार प्लस साइन को लेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एक, जब हमने प्लस साइन लिया। और जब हमने माइनस साइन लिया तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू -5, एंड x इज इक्वल्स टू -5/3। तो ये तो आंसर पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है ये वाला। तो x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। Next, the SI unit of electric flux is. The SI unit of electric flux will be, अब हमें पता है flux is equals to होता है E into A। अब E का होता है वोल्ट पर मीटर एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट मीटर हमारे पास बचता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
ये असर्शन रीजन टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने इंसर्ट किया है यहाँ पर। असर्शन है सिक्स्थ क्वेश्चन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। तो अगर हम असर्शन रीजन को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अगर क्लैरिफाई करते चले, तो असर्शन तो मुझे बिल्कुल ट्रू दिख रहा है, बिकॉज वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। और अब रीजन की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। So, and since the electrostatic field is a conservative field, that's why the electric field lines never form closed loops. So, this is the answer would be A and R are true, and R is the correct explanation of, and R is the correct explanation of A. ये वाला पार्ट हो जाएगा. Next, seventh question. Electric field lines do not cut at any point. Reason, at any point there is only one direction of electric field. फिर से ये दोनों ही true है. A and R are true, and R is the correct explanation of, A. तो ये फिर से हम देख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन रीजन थे, इजीली बन जाने चाहिए थे प्रॉपर्टीज पढ़ने से. Next, an electric dipole is placed at the center of a sphere. The flux passing through the surface of the sphere would be. तो इसमें हमें पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है बहुत बड़ा सा, एंड इसके सेंटर पे एक डाइपोल का सिस्टम रखा हुआ है, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. सो द फ्लक्स पासिंग वुड बी, तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम वी नो दैट the flux through any surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. अब अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज जीरो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी जीरो हियर. अगर सिंगल चार्ज होता तो फ्लक्स आता, पर क्योंकि डाइपोल है तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स. Next, the linear charge density on a straight wire of length L is given by lambda x is equals to lambda naught x to the power cube. The total charge on the wire will be dash coulombs. अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैम्डा x दिया हुआ है लैम्डा नॉट x क्यूब. अब हमें पता है, we know that लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, ये होता है. तो अगर मुझे चार्ज पता करना है, तो मुझे लैम्डा को मल्टीप्लाई करना होगा डीएल से. अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना है, तो मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, और जो हमें यहाँ पता करना है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स क्यू डी एल. तो अब हम लोग देखेंगे, ये L की जगह हो जाएगा x, क्योंकि ये x का फंक्शन दिया हुआ है, ये याद रखेंगे, ये x का फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x. तो फिर हम इसको लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, ये भी हो जाएगा डी एक्स है. क्यों हमने x किया l की जगह, क्योंकि अभी लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो उसके टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे. तो लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू पावर 4/4, और ये हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू l, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर इज l. तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा आंसर लैम्डा नॉट टू द पावर 4/4. सो करेक्ट आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q. और यहाँ से अगर हम लोग इसका SI यूनिट देखेंगे, मैं साथ में SI यूनिट के बारे में भी बता दूं, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, SI इलेक्ट्रिक फील्ड का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इसका आंसर होगा, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर खुद को इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस पॉइंट पे हमारे पास, अगर हम लोग अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सपोज इसमें से,
अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो हम देखेंगे एक टैंजेंट ऐसे जाएगा, एक टैंजेंट ऐसे जाएगा, तो जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो इसलिए इसका आंसर होगा, इफ टू लाइंस intersect each other, then there will be two directions of field which is not possible. So for this reason, two electric lines of force never intersect each other. Now moving on to next question. Imagine Imagine there is a uniform electric field E is equals to 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. Find out the flux of this electric field through a square of side 10 centimeter, the plane of which is parallel to the YZ plane. तो मैं इसका डायग्राम अगर बनाऊं, डायग्राम बनाने से ये ज्यादा क्लियर होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेट मी मेक इट इन अ बेटर वे, लेट मी ड्रॉ दिस वन। सबसे पहले हम एक्स वाई जेड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। Okay, sorry for the break. There was a background noise due to which I have to pause the video. So it is given that there is a square which is placed along the plane of YZ axis. That means if this is Y, this is X, this is Z. So this will be placed on the YZ plane in such a way that its area loop is pointing along the X direction. So already the electric field is given as 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. So area will be given as, area is a square, so 100 into 10 raised to power minus 4. Why I have done this? Because it is given in 10 centimeter form. We have to convert it into meter, and its area vector is pointing again in I cap. So this will be now meter square. We know that flux is equals to the dot product of electric field and area vector. So this would be 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 2. So this will be 3 into 10, that is 30. You can write it as voltmeter as well, or it can be written as 30 Newton meter square upon coulomb. So this would be the answer. Now moving on to next question. The electric field lines are pictorial representations of electric fields due to static charges on the plane of a paper. Study the given electric field representation and identify one incorrect qualitative impression given by this representation. So first of all, if we check the first option, the electric field at point A is stronger than at point B. Obviously, it is closer to the charge, so it will be having more strong field as compared to B, which is far away. So this is correct. Now the next point B, the electric field distribution is two-dimensional. No, this is something looking like wrong, so it is a wrong statement. Now let us check for another statements. The electric field at point C is 0. Yes, because all the field lines are radiating away from the charges. So this is also correct. And the fourth one, the electric field always points away from a positive charge. This is also correct. So the one and only
incorrect statement is electric field distribution is two-dimensional. So this would be the answer for this question. We have to find out incorrect statement, mind it. So this would be the answer. Now next, a charge q plus 2 coulomb is located at the center of a circle of radius 2 meters. A unit positive test charge is moved along the circle. Identify the correct statement. So for this, there is a charge present at the center, that is 2 coulomb charge, and a unit positive charge is moved along the center, it is said that. Now what will be the answer to this? If I just take this one, that is R is given as 2 meter and charge is given as 2 coulombs. Now we know that dW is equals to V into dQ, that is product of potential and charge. For sorry, I've written it in. So dW will be equal to Q into dV. Q is fixed, potential is now varying. So dW will be equal to Q into 0. Now why it will be equal to 0? Because for a conservative force, work done over a closed loop is 0. So potential difference will be 0 along all the parts, because this is a positive charge and it will be having electric field intensity like this, radiating outwards at a distance of 2 meters radius. So now you can see that if we join the tips of these electric fields, we will be getting an equipotential surface, and over equipotential surface the potential difference is equals to 0, hence the work done would be equal to 0. And this shows that the correct option for this question would be work done in moving a test charge between any 2 points along the circle is 0. This is the correct answer. Next, a spherical Gaussian surface encloses a positive charge q. Explain with a reason what happens to the net electric flux through the Gaussian surface if the charge is tripled. So if the charge is tripled, then the flux would also be tripled. This is the first part's answer. And second, the shape of the Gaussian surface is changed into a cuboid. There will be no change because the flux depends only on the net charge enclosed by the surface and not on the shape of the surface. So this is the answer. Now coming on to the last question, that is derive the expression for electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole. So solving the first part, first of all, we can make the two charges, that is minus q and plus q, and this is the center of these dipole. Minus q plus q, they form a dipole. Now let us take a point on the equatorial line. Equatorial line means perpendicular passing through the center, and join these 2 points and mark this point as A and this point as B, this point as C. The total distance between the two dipole is 2A, and now from the middle of the dipole it will be A and A either side. This part is A. So now what we are going to do is, first of all, we are going to identify the force. So due to this plus q charge, we assume that there is a plus q naught charge at point A, that is a test charge, and test charge is always positive. So due to this plus q charge, it will be experiencing a force of repulsion and it will be repelled away. And due to this charge that is placed at B, that is minus q, it will be attracted towards this side. So the net field would be like this. How you can say that? If we just resolve these forces, we see that, see, if I write,
If I write this force as force on A due to C and this as force on A due to B, so what will happen if we resolve this? This angle is, if this angle is theta, this will be also theta, this will be also theta. So if we resolve this, then this will be FAC of sine theta and this side will be FAB of sine theta. This side, let me use another ink so that you get it a clear, or you get it as a clear picture. This will be FAC cos of theta and this side will be FAB cos of theta. Now we have been asked for electric field. So electric field and force are proportional. So we can make it as EAC cos of theta and EAB cos of theta. So the net force acting at point A will be equal to 2E cos of theta. Now why I have written 2E cos of theta? Because EAC is equals to EAB. Both are equal charges, that is charges equal in magnitude, just they are applying force of attraction and repulsion. So this can be written as 2E cos of theta. और if I elaborate it, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that is it will be the sum of EAC cos of theta plus EAB cos of theta. Now EAC is equals to EAB, इसको हम कॉमन वैल्यू दे देते हैं E, तो ये हो जाएगा E cos theta प्लस E cos theta, तो ये आ जाएगा 2E cos of theta, इक्वेशन नंबर 1. अब हम पहले तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे. वी नो दैट E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो K, जब पॉइंट C की बात कर रहे हैं तो, या पॉइंट B की बात कर रहे हैं तो Q क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड Q ही रहेगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका 1/2 था और इसका भी स्क्वायर, मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये जो AC डिस्टेंस होगा ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया. सिमिलरली कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. अब अगर हम इसको कंटिन्यू करें आगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था इस ए पे, वो आना चाहिए 2E cos ऑफ थीटा. 2E cos ऑफ थीटा, तो E आया है हमारा K Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा आया है A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी. अब क्या करेंगे, हम K को बाहर निकाल लेंगे, Q है और 2A है, ये सब एक साथ आ गए और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1 तो 3/2. अब K इंटू क्यू इंटू 2A हो जाएगा डाइपोल मोमेंट एंड दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ऑल्सो इफ वी सी दैट, अगर हम डायग्राम में देखें तो R बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू A, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे R इज ग्रेटर देन A, तो फिर हम उसे इग्नोर कर सकते हैं A को. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A अल्टीमेटली कितना आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर 3/2. हमने A को इग्नोर कर दिया तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब. तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, ये इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से जो आता है. Now coming on to the B part, I'll be putting it with another ink, that is B part asked for depict the orientation of the dipole in stable and unstable equilibrium in uniform electric field. तो इसमें अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम लोग इसका, ये हमें डायग्राम बनाना है एक्चुअली, इसमें ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसमें रहा
होगा तो वो किस तरीके से रहा होगा। तो ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ग्रीन कलर से, लेट इट मार्क इट एज माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। नाउ कमिंग ऑन टू दिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर हम फिर से बनाए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमारा डाइपोल अब कैसा हो जाएगा, इसमें हमारा डाइपोल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब माइनस क्यू यहाँ हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। So this is all about practice questions from chapter 1, electric charges and fields. Hope this helps you a lot. If you liked my video, then please don't forget to subscribe to my channel so that you get more of these kind of videos and get to practice questions that are actually competency based and going to help you in the near future in your board exams. Till then, take care and thank you.